Assalamualaikum dear students, I am coming again here with a topic and that topic is related to Earth's magnetism, or dear students we can say it is related to geomagnetism or terrestrial magnetism. Okay, very nice. And that question is magnetic elements of Earth. ठीक है ना? तो बेटा आज डिस्कशन हो जाएगी मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ के बारे में, ठीक है ना? And that is related to Earth's magnetism. The branch that deals with the Earth's magnetism is known as terrestrial magnetism. और बेटा इसको कहेंगे जियोमैग्नेटिज्म, ठीक है ना? तो बेटा जियोमैग्नेटिज्म का टॉपिक है, लेट अस डिस्कस हियर, ठीक है ना? तो ये क्या होते हैं, व्हाट आर मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ, ठीक है ना? तो बेटा आज का एक और क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करेंगे एंड दैट क्वेश्चन इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स. दैट विल बी माय नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह इन टुडेस टॉपिक. लेकिन पहले डिस्कस करेंगे यहाँ मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ क्या है, व्हाट आर दीज. देखो बेटा क्या है कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है कि What are the clues about Earth's magnetism? बेटा इसके बारे में मैंने आपको बताया और फिर बेटा इसके बाद मैंने आपको जानकारी दे दी थी किसके बारे में बेटा, causes of Earth's magnetism के बारे में. फिर बेटा मैंने डिस्कस किया था general features of Earth's magnetism, ठीक है ना? अब बेटा ये एक और टॉपिक है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जो मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ एंड दैट टॉपिक इज मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ, ठीक है ना? देखो बेटा there are three magnetic elements of earth. What are these? What are these magnetic elements of earth? Those elements which help us, which gives us magnitude and direction of earth's magnetic field at any place on the surface of earth, both in magnitude as well as in direction. देखो पहले बेटा क्या है, what are magnetic elements of earth? Those physical quantities which completely give us magnitude and direction of Earth's magnetic field. Direction of Earth's magnetic field at any point Earth's magnetic field, both in magnitude as well as direction of Earth's magnetic field at any place on the surface of Earth. At any place on the surface of Earth. And those elements are known as magnetic elements. क्या बेटा लिखा मैंने? Okay, very nice. तो बेटा मैंने लिखा यहाँ those physical quantities, magnetic elements are physical quantities, those physical quantities which completely give us magnitude and direction. जो बेटा बोथ देता है magnitude as well as direction. लेकिन किसका? Earth's magnetic field का at any place, किसी जगह पर on the surface of Earth. अरे बेटा those physical quantities which give us magnitude and direction of Earth's magnetic field. जो बेटा those physical quantities जो हमें देता है direction as well as magnitude किसका? Earth's magnetic field का किसी जगह पर on the surface of Earth. And that those physical quantities are known as magnetic elements of Earth. तो magnetic elements of Earth तो physical quantities है जो हमें किसी जगह पर बताती है कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या होगा अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का इस जगह पर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. तो बेटा यही मैंने लिखा, दोज फिजिकल क्वांटिटीज which completely give us magnitude and direction of Earth's magnetic field at any place on the surface of Earth. Okay, very nice. There are three. तो बेटा कितनी physical quantities है? Three. There are three physical quantities. There are three magnetic elements of Earth. देखो बेटा, there are three magnetic elements. Magnetic elements of Earth. तो बेटा कितने हैं? तीन. एक का नाम है मैग्नेटिक इंक्लिनेशन. और बेटा एक डिनोट करते हैं थीटा से यहाँ. ओके, वेरी नाइस. मैग्नेटिक इंक्लिनेशन है बेटा, यहाँ लिखेंगे मैग्नेटिक डिक्लिनेशन. पहला है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन और बेटा दूसरा जो है और एक थीटा से यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं. और दूसरा एलिमेंट जो है बेटा दैट इज मैग्नेटिक इंक्लिनेशन. और बेटा डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ. और इसका दूसरा नाम है डिप एंगल.
और इसका दूसरा नाम है बेटा डिप एंगल। तो बेटा तीसरा जो है दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ठीक है ना। ओके, वेरी नाइस। तो बेटा देयर आर 3 मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ। तो पहला क्या है बेटा? पहला है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। डिक्लिनेशन और बेटे थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरा क्या है बेटा? दूसरा यहाँ जो है दैट इज मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, वो डेल्टा से लिखते हैं, और डिप एंगल। और बेटा तीसरा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एच। अगर ये तीन चीजें हमें बेटा मालूम हो गई किसी प्लेस पर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो हमें पता चलेगा वहां की अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बोथ इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन। तो बेटा ये है मैग्नेटिक एलिमेंट्स 3। नाउ आई विल डिस्कस दिस वन बाय वन। ओके, तो मैं बेटा पहले डिस्कस करूंगा यहाँ मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, ठीक है ना। इसके बाद ये और इसके बाद तीसरा। सीधी है। तो बेटा सबसे पहले जो यहाँ डिस्कस होने वाला है एंड दैट इज हियर तो पहले डिस्कस करेंगे यहाँ बेटा किसको? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन को। ये बेटा थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और व्हाट इज दिस? बेटा दिस इज द एंगल बिटवीन द axis of Earth's magnetic field or axis of Earth suspended bar magnet with the axis of geographic axis of Earth. Okay, very nice. तो क्या है बेटा? It is the angle between magnetic axis of Earth and geographic axis of Earth. तो बेटे ये किसके दरमियान एंगल है? दिस इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ अर्थ एंड इट इज जियोग्राफिक एक्सिस। बिकॉज बेटा मैग्नेटिक एक्सिस एंड जियोग्राफिक एक्सिस आर नॉट aligned in the same way. There is an angle between them, ठीक है ना, and that angle is known as magnetic declination. देखो बेटा क्या है कि अगर मैं यहाँ ऐसे बेटा सीधे यहाँ मैं एक बॉर मैग्नेट सस्पेंड करूंगा ऐसे बेटा, मैंने सस्पेंड किया ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ये है बॉर मैग्नेट। यहाँ बेटा मान लीजिए कि इसका साउथ पोल है और मान लीजिए कि बेटा यहाँ इसका नॉर्थ पोल है, ठीक है ना। तो बेटा मान लीजिए कि ये है जियोग्राफिक एक्सिस ऑफ अर्थ। ओके वेरी नाइस। यहाँ एस जी है, ठीक है ना। ओके वेरी नाइस, ठीक है ना। तो बेटा मान लीजिए कि यहाँ एस एन है, हेयर इट इज जियोग्राफिक साउथ एंड इट इज जियोग्राफिक, यहाँ बेटा लिखो ऐसी एम जी है दैट इज जियोग्राफिक नॉर्थ, ठीक है ना। दिस इज जियोग्राफिक साउथ ऑफ अर्थ एंड दिस इज जियोग्राफिक नॉर्थ ऑफ नॉर्थ साउथ एक्सिस, ठीक है ना। एंड दैट एक्सिस द लाइन जॉइनिंग बिटवीन साउथ एंड नॉर्थ, दैट इज एक्सिस ऑफ दिस बॉर मैग्नेट एंड दैट इज मैग्नेटिक एक्सिस। तो जो इनके दरमियान बेटा ये एंगल आएगा, ये एंगल ये है थीटा, एंड दैट इज नोन एज, दिस थीटा इज नोन एज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ठीक है ना बेटा। क्या मैंने कहा कि ये नॉर्थ पोल है यहाँ बेटा, ये इसका साउथ पोल है, ठीक है ना, सस्पेंडेड बॉर में। और बेटा ये अलाइन हो जाएगा अलोंग द मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ अर्थ, इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक एक्सिस होगी अर्थ की। लेकिन मैग्नेटिक एक्सिस जो है ना, यहाँ अर्थ का बेटा साउथ होगा और यहाँ अर्थ का नॉर्थ होगा, ठीक है ना, क्योंकि साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा और नॉर्थ किसको? साउथ को। लेकिन एक्सिस तो सेम होगी एंड दैट एक्सिस इज इंक्लाइनेड विद द जियोग्राफिक एक्सिस। ये जियोग्राफिक एक्सिस ऑफ अर्थ है एंड दैट मेक्स हियर थीटा। दिस इज नॉट, ये इसी डायरेक्शन में नहीं होता है बल्कि एक एंगल होता है इनके दरमियान, एंड दैट एंगल बिटवीन जियोग्राफिक एक्सिस ऑफ अर्थ एंड द मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ अर्थ, बिकॉज द सस्पेंडेड बार मैग्नेटिक एक्सिस इज अलोंग द मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ अर्थ। लेकिन यहाँ की डायरेक्शन क्या है? एक ही फर्क क्या है कि यहाँ नॉर्थ है, वहाँ अर्थ का साउथ मैग्नेटिक होगा।
यहाँ सस्पेंडेड बार मैग्नेट का साउथ है, लेकिन अर्थ मैग्नेटिक का वहां नॉर्थ होगा, लेकिन एक्सिस तो सेम होगी, सस्पेंडेड बार मैग्नेटिक एक्सिस की और अर्थ मैग्नेटिक एक्सिस की। लेकिन ये एक्सिस बेटा जियोग्राफिक एक्सिस से एंगल बनाता है, एंड दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ठीक है ना। इट इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ अर्थ, क्योंकि जिस डायरेक्शन में सस्पेंडेड बार मैग्नेट की एक्सिस है, इसी डायरेक्शन में अर्थ की एक्सिस भी है, and geographic axis of earth at any place on the surface of earth, at any place on the surface of earth। ओके बेटा, ये बात समझ में 100% श्योर? हाँ सर, ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस। ये सस्पेंड किया है यहाँ हमने, ये मिड पॉइंट इसका, ओके वेरी नाइस गुड। यहाँ ही मिड पॉइंट है, क्योंकि आप यहाँ थोड़ा यहाँ हो गए, नो प्रॉब्लम, ये है थीटा और ये है थीटा, एंड दैट थीटा इज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। अब बेटा यहाँ ऐसे लिखेंगे, एक और तरीका लिखने का है इसका, एक और देखो बेटा क्या है, और इसकी एक और डेफिनेशन है, इट इज आल्सो डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन magnetic meridian and geographic meridian, magnetic meridian and geographic meridian at any place on the surface of earth। On the surface of earth। तो बेटा क्या लिखा मैंने दूसरी डेफिनेशन, पहली डेफिनेशन आपको समझ में आई, आप ये दूसरी डेफिनेशन आपको समझाएंगे, ठीक है ना। ओके बेटा, देखो बेटा जी, सीडीएल अगर बेटा हम यहाँ लेंगे, देखो बेटा क्या है, ऐसे लेंगे, समझाएंगे आपको। देखो बेटा क्या है, यहाँ मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है समझाएंगे आपको। ये अर्थ है, देखो बेटा ये अर्थ है, ये बेटा यहाँ नॉर्थ है, अर्थ का जियोग्राफिक नॉर्थ, और बेटा यहाँ जियोग्राफिक साउथ है, एस जी जियोग्राफिक साउथ। और बेटा यहाँ बार मैग्नेट का क्या है, अर्थ बार मैग्नेट का यहाँ बेटा है साउथ, तो साउथ मैग्नेटिक लिखेंगे, और बेटा यहाँ है नॉर्थ अर्थ इस मैग्नेटिक फील्ड का, यही थीटा जो है, एंड दैट थीटा इज नोन एज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तो बेटा देखो क्या है, यहाँ बेटा ये नॉर्थ मैग्नेटिक है, नॉर्थ एम है, तो ये एक्सिस है अर्थ मैग्नेटिक एक्सिस, और ये है एक्सिस ऑफ जियोग्राफिक एक्सिस ऑफ अर्थ। दिस इज मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ अर्थ, दिस इज जियोग्राफिक एक्सिस ऑफ अर्थ, और इनके दरमियान जो एंगल है, दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। अब देखो क्या है, मैंने ये एक और डेफिनेशन लिखी, इट इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन। देखो बेटा जो यहाँ है ना, अगर हम यहाँ वर्टिकली ऐसे लगाएंगे ना, एक वर्टिकली क्या काटेंगे इसको ऐसे वर्टिकली, और जहां जहां ये बेटा काटेंगे ऐसे और उसको ऐसे काटेंगे, तो वर्टिकल प्लेन जो आएगा, एंड दैट वर्टिकल प्लेन इज नोन एज मैग्नेटिक मेरिडियन। और जो जियोग्राफिक एक्सिस के यहाँ बेटा काटेंगे, जहां यहाँ अगर उसको काटेंगे ऐसे ऐसे, तो जो ये प्लेन आएगा यहाँ, इसको कहेंगे एक्सिस के इसी एक्सिस के अबाउट अगर कोई प्लेन लेके हम काटेंगे और उसको दो हिस्सों में तकसीम करेंगे, तो जो प्लेन आएगा यहाँ काटने से, इस प्लेन को कहेंगे जियोग्राफिक मेरिडियन। लेकिन यहाँ अगर काटेंगे इसको कहेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है ना। तो इट इज द एंगल बिटवीन जियोग्राफिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिक मेरिडियन, ये दिखाएंगे बेटा। देखो कैसे, लेट्स टेक हियर ए प्लेन, ऐसे लेंगे बेटा प्लेन ऐसे, ठीक है ना, ऐसे। देखो बेटा क्या है, ये बेटा लेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है ना, यहाँ लेंगे बेटा सीडी, ओके वेरी नाइस। तो बेटा यहाँ लिखेंगे बेटा, मैं लिखूंगा यहाँ बीसी, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो आप लिखेंगे नो प्रॉब्लम, ऐसे। ये है ये मेरिडियन, ये है मैग्नेटिक मेरिडियन, ये मैंने ऐसे ले लिया, यहाँ ले लिया, ये समझाने की, हाँ, क्योंकि बेटा जिस डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक है ना, इसी डायरेक्शन में अर्थ का भी होगा, ये समझाया था मैंने आपको समझाने के लिए। देखो बेटा क्या, आप देखो यहाँ की यहाँ इसी डायरेक्शन में अर्थ का मैग्नेटिक मेरिडियन होगा ना, इसी अगर वर्टिकल प्लेन जहाँ काटेंगे, तो ये मैंने ले लिया क्या, ए बी सी, और बेटा यहाँ लिखो एडी लिखेंगे, यहाँ एडी लिखेंगे, ठीक है ना। ये प्लेन है, दैट प्लेन इज मैग्नेटिक मेरिडियन,
दैट इज मैग्नेटिक मेरिडियन। और बेटा ये प्लेन अब यहाँ अगर काटेंगे, ऐसे ऐसे काटेंगे ना, यहाँ अगर अर्थ को ऐसे काटेंगे बेटा, ऐसे काटेंगे ना अर्थ को, तो बेटा ये होगा यहाँ ऐसे। बेटा देखो क्या है, दिस विल बी है यहाँ ऐसे, तो बेटा ये जो होगा यहाँ, एंड दैट विल बी, दिस इज, बेटा ये क्या होगा, दिस विल बी, बेटा ये क्या होगा, दैट इज हियर, इसको लिखो यहाँ बेटा बी डैश सी डैश, एंड दैट इज जियोग्राफिक मेरिडियन। बेटा ये क्या है यहाँ, ये है यहाँ जियोग्राफिक मेरिडियन। प्लेन्स है, वर्टिकल प्लेन्स है along axis of, this is along magnetic axis of earth and this is along geographic axis of earth। तो दोनों के दरमियान जो एंगल है यहाँ थीटा, ये प्लेन ये थीटा, एंड दैट एंगल थीटा इज नोन एज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। और बेटा ये भी कितना है, ये भी थीटा है यहाँ, और दैट इज आल्सो नोन एज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ये एक प्लेन है, यहाँ ऐसे एक प्लेन है, और बेटा यहाँ ऐसे दूसरा प्लेन है। यहाँ एक प्लेन है along magnetic meridian, this is magnetic meridian along this, and along this is, बेटा ये कौन सा है, ये geographic meridian है, because geographic axis के vertical plane जो अर्थ में आता है। ओके, वेरी नाइस। तो ये एंगल है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, और ये एंगल है बिकॉज दिस, यहाँ लिखेंगे आपकी खातिर में बेटा ए बी सी डी इज, बेटा ये क्या है, ये है मैग्नेटिक मेरिडियन। दिस प्लेन इज मैग्नेटिक मेरिडियन। और बेटा ए बी डैश सी डैश डी, ये प्लेन, ये थोड़ा ऐसे, एंड दैट इज जियोग्राफिक मेरिडियन। ओके, वेरी नाइस। तो इनके दरमियान जो एंगल आता है, दैट एंगल इज आल्सो नोन एज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, दैट इज आल्सो नोन एज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ बेटा, दूसरा पॉइंट जो डिस्कस करने जा रहा हूं, दैट इज मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और डिप एंगल। देखो बेटा, नेक्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर इज, ये साफ करेंगे बेटा, करेंगे साफ यहाँ। ओके, करेंगे साफ। देखो बेटा, तो नेक्स्ट पॉइंट बेटा यहाँ जो डिस्कस करने जा रहा हूं, एंड दैट नेक्स्ट पॉइंट इज सेकंड पॉइंट हियर, दैट इज मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, और बेटा इसका दूसरा नाम है डिप एंगल। डेल्टा से लिखते हैं बेटा, किसे लिखते हैं, डेल्टा से। देखो बेटा ये क्या है, व्हाट इज डेफिनेशन फॉर दिस, डेफिनेशन क्या है इसके लिए बेटा, इट इज द एंगल दैट इज मेड बाय टोटल अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। देखो बेटा, इट इज द एंगल between the total Earth's magnetic field and the horizontal line of the Earth's surface at any place on the surface of Earth, at any place on the surface of Earth। ठीक है ना, तो बेटे क्या लिखा मैंने, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है, इट इज द एंगल बिटवीन द टोटल अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, जो अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड बनाता है ना किसी जगह हॉरिजॉन्टल के साथ, चाहे ये ऐसी है फील्ड, ऐसी है मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन हॉरिजॉन्टल के साथ किसी सरफेस पर, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ पर क्या बनाता है एंगल, एंड दैट एंगल इज नोन एज डिप एंगल और मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। दिखाएंगे यहां बेटा, देखो सीरियल। अगर बेटा यहां मैं लूंगा अर्थ सरफेस ऐसे, ठीक है ना, ये अर्थ सरफेस मैंने ले लिया, देखो बेटा क्या है ऐसे, ठीक है ना, यहाँ बेटा इसका साउथ नॉर्थ साउथ एक्सिस है अर्थ की,
और बेटा ये है यहाँ बेटा ये सस्पेंडेड बोर नहीं सस्पेंडेड नहीं, ये अर्थ मैग्नेटिज्म है। यहाँ बेटा साउथ है, साउथ मैग्नेटिक, और बेटा यहाँ नॉर्थ मैग्नेटिक, और बेटा यहाँ जी है जियोग्राफिक, और ये साउथ जियोग्राफिक। ओके देखो बेटा क्या है सीरियर, यहाँ ऐसी फील्ड है, आपको पता है ना फील्ड कैसे है यहाँ बेटा, ऐसी ऐसे है ना फील्ड, ऐसे मैग्नेटिक लाइन्स है ऐसे बेटा, यहाँ ऐसे है ना मैग्नेटिक लाइन्स ऐसे है बेटा, ठीक है ना, यहाँ ऐसी। इनसाइड देयर डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, लेकिन आउटसाइड क्या है बेटा, आउटसाइड देयर डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, लेकिन इनसाइड क्या है इनकी डायरेक्शन बेटा, इनसाइड इज साउथ टू नॉर्थ बट आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ। देखो बेटा क्या, अगर बेटा यहाँ रखेंगे, यहाँ कोई यहाँ इस प्लेस पर रखेंगे, इस प्लेस पर अगर यहाँ रखेंगे कोई यहाँ जगह कोई कंट्री है, यहाँ सपोज यहाँ कोई मकान है, यहाँ हमने सस्पेंड किया ऐसी, ये सस्पेंशन किया, तो जो बार मैग्नेट यहाँ सस्पेंड करेंगे आप बेटा, ये आएगा हॉरिजॉन्टल में, किसमें आएगा कि यहाँ से नॉर्थ पोल है अर्थ का, यहाँ से साउथ पोल है अर्थ का मैग्नेटिक का, तो यहाँ होगा साउथ पोल ऑफ किसका बेटा, सस्पेंडेड बार मैग्नेट का, और यहाँ नॉर्थ। क्यों, क्योंकि साउथ को अट्रैक्ट करेगा नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ, और नॉर्थ को सस्पेंडेड बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल किसके साथ अट्रैक्ट हो जाएगा, साउथ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक, ठीक है ना। तो ये हॉरिजॉन्टल रहेगा, यहाँ थीटा क्या आएगा, ये डेल्टा एंगल आएगा 0। क्यों, क्योंकि ये मैग्नेटिक एक्सिस टोटल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है, इसी डायरेक्शन में अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, ये इस हॉरिजॉन्टल के साथ यहाँ इस सरफेस के साथ थीटा बनाता है 0 एट इक्वेटर, ये इक्वेटर है बेटा, इसको कहते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर। एट मैग्नेटिक इक्वेटर बेटा एंगल डिप एंगल क्या है 0। क्यों, इट इज द एंगल बिटवीन द टोटल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड तो हॉरिजॉन्टल है यहाँ, तो बेटा सस्पेंडेड मैग्नेट जिस डायरेक्शन में है इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में सस्पेंडेड बार मैग्नेट रहेगा ना इसी डायरेक्शन में अर्थ मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसी डायरेक्शन में ये अलाइन करेगा। और जब ये सस्पेंड करोगे तो बता बेटा ये क्या बनाएगा, ये यहाँ क्या बनाएगा, टोटल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जो है ना इसी डायरेक्शन में है, तो बेटा इस सरफेस के साथ क्या बनाएगा 0 0। हियर टोटल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड विल फॉर्म एंगल 0 विद द डायरेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ अर्थ सरफेस। तो डिप एंगल क्या आएगा बेटा, डेल्टा विल बी एट इक्वेटर, इक्वेटर पर क्या आएगा बेटा, डेल्टा आएगा 0। क्यों, बिकॉज बेटा अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हियर इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ अर्थ सरफेस, क्योंकि इसी डायरेक्शन में बेटा ये अलाइन होगा सस्पेंडेड बार मैग्नेट भी। ओके बेटा, अगर यहाँ सस्पेंड करेंगे बार मैग्नेट को, देखो बेटा अगर अब यहाँ करेंगे ना सस्पेंड, यहाँ कोई यहाँ बेटा देखो यहाँ बार मैग्नेट को कोई यहाँ बेटा ये सस्पेंड करेंगे तो कोई प्लेस है यहाँ, जब सस्पेंड किया गया तो ये ऐसे रहेगा बार मैग्नेट, यहाँ बेटा यहाँ साउथ पोल है तो सस्पेंडेड बार मैग्नेट का यहाँ नॉर्थ रहेगा और यहाँ साउथ, ये वर्टिकल रहेगा, यहाँ ये वर्टिकली रहेगा विद द हॉरिजॉन्टल के साथ क्या रहेगा वर्टिकल। तो बताइए डेल्टा कितना होगा, एट पोल्स, ये नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है और ये साउथ मैग्नेटिक पोल है, सर ये साउथ मैग्नेटिक पोल है, ये नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है, तो सस्पेंडेड बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल यहाँ साउथ के साथ जाएगा और यहाँ वर्टिकल रहेगा, ये ऐसे वर्टिकली रहेगा, इसी डायरेक्शन में है ना अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ है ऐसी बेटा, इसी डायरेक्शन में अलाइन करेगा अर्थ मैग्नेट, तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या बनाएगा यहाँ बेटा, डायरेक्शन क्या है इसकी 90। तो बेटा एट पोल्स द डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस बट हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सरफेस इज दिस, और इसी डायरेक्शन में रहेगा ये सस्पेंडेड बार मैग्नेट, तो बेटा अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, लेकिन ये रहेगा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो एट पोल्स डेल्टा कितना आएगा 90, आई बात समझ लो। अरे अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कितना एंगल बनाते हैं यहाँ हॉरिजॉन्टल के साथ 90, it is the angle between the earth's magnetic field with the horizontal surface, with the horizontal line of earth's surface, तो यहाँ 90 है लेकिन यहाँ 0 है, यहाँ थीटा कितना आएगा, थीटा यहाँ 90, यहाँ ये यहाँ लाइन ऐसी आती है तो सरफेस ऐसी है, यहाँ क्या है बेटा, यहाँ लाइन क्या बनाती है इस सरफेस के साथ, यहाँ अर्थ थीटा इज इक्वल टू 0, तो इक्वेटर पर डेल्टा इज 0 बट एट पोल्स डेल्टा इज 90, बट इस डेल्टा इंक्रीजेस, बेटा लिखो यहाँ delta increases as we go from equator to poles। देखो बेटा यहाँ ये 0 है, 0 लेकिन थोड़ा टिल्ट हो गया, बढ़ गया एंगल थोड़ा बढ़ गया एंगल थोड़ा, यहाँ बेटा देखो बेटा क्या है, यहाँ थोड़ा 30 बन गया, ठीक है ना, यहाँ ऐसे रहा, यहाँ ऐसे बेटा ठीक क्या है, यहाँ अर्थ ऐसी है, यहाँ बेटा ऐसे रहा तो कुछ भी एंगल बन गया इसके साथ अर्थ सरफेस के, यहाँ ऐसे बेटा, यहाँ ऐसे, यहाँ फाइनली ऐसे, तो यहाँ बन गया 90 एंगल, ठीक है ना। तो ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ कितना एंगल बनाएगा यहाँ बेटा 90, तो यहाँ थोड़ा कम हो जाएगा, ऐसे, तो यहाँ हॉरिजॉन्टल रहेगा,
लेकिन यहाँ सस्पेंडेड बार में ऐसे रहेगा, इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाएगा बेटा, ये बनाएगा हॉरिजॉन्टल के साथ यहाँ 90, लेकिन यहाँ बनाएगा 0. सो डेल्टा इंक्रीजेस, सो डेल्टा डिप एंगल इंक्रीजेस एज वी गो फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स. ओके वेरी नाइस. अब ये दिखाएंगे इसी बेटा मैग्नेटिक मेरिडियन पर दिखाएंगे. देखो बेटा कैसे सीरियल, ये आपको पता है कि बेटा ये कौन सा मेरिडियन है. यहां लिखेंगे बेटा इसको बी सी ए बी सी डी, ठीक है ना. ओके वेरी नाइस. और बेटा ये कौन सा प्लेन है, बेटा ये है मैग्नेटिक मेरिडियन. और बेटा ये है जियोग्राफिक मेरिडियन. ये है बेटा थीटा. और मान लीजिए कि अर्थस मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक मेरिडियन पर है, क्योंकि ये जियोग्राफिक मेरिडियन पर नहीं हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक मेरिडियन पर हो सकता है बेटा. देखो क्या है यहाँ, मान लीजिए कि अर्थस मैग्नेटिक फील्ड है ई. लेट बी इज, यहाँ बेटा बी क्या है, व्हाट इज बी, बी हियर इज अर्थस मैग्नेटिक फील्ड. तो बेटा इसी डायरेक्शन में है. देखो बेटा क्या है यहाँ दिखाएंगे, अगर हम सस्पेंड करेंगे ना ऐसे मैग्नेट, इसी डायरेक्शन में नीडल होगी. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल. ऐसे बेटा इसी डायरेक्शन में रहेगी. अगर ये हॉरिजॉन्टल है, देखो बेटा क्या है यहाँ अर्थ की, यहाँ ऐसे डिप हो जाएगा, डिप किसी सरफेस पर. यहाँ बेटा ये सरफेस है हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, लेकिन ये डिप ऐसे हो जाएगा ये नीडल. बेटा ठीक है ना, वेरी नाइस. ये नीडल ऐसे डिप हो जाएगी इसी डायरेक्शन में ऐसे यहाँ. तो इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा. लेट दिस मेक्स एन एंगल, क्या बेटा बनाता है डिप डेल्टा, डेल्टा हॉरिजॉन्टल के साथ. ये हॉरिजॉन्टल के साथ बेटा कितना एंगल बनाएगा, डेल्टा. दैट इज टोटल अर्थ में. इसी टोटल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है, इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक नीडल अलाइन हो जाएगी. तो मैग्नेटिक नीडल है इसी डायरेक्शन में, तो बेटा ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ क्या बनाएगी, अर्थ सरफेस पर डेल्टा. तो डेल्टा एंड दैट डेल्टा हियर इज हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ अर्थ सरफेस एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ. ऑन द मैग्नेटिक मेरिडियन पर है, ये सब कुछ मैग्नेटिक मेरिडियन पर है. ओके वेरी नाइस. देखो बेटा क्या है, अब इस बी का कंपोनेंट यहाँ क्या आएगा, बी का यहाँ बी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा बी कॉस डेल्टा. और यहाँ आएगा बेटा बी का कंपोनेंट बी साइन डेल्टा. एंड दैट इज नोन एज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ's मैग्नेटिक फील्ड एंड दैट इज नोन एज वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ's मैग्नेटिक फील्ड. ये अर्थ's मैग्नेटिक फील्ड मैंने लेट इट मेक्स एन एंगल विद हॉरिजॉन्टल के साथ क्या बनाता है, डेल्टा. टोटल अर्थ's मैग्नेटिक फील्ड. तो बेटा ऑन द मैग्नेटिक मेरिडियन पर एक सब कुछ मैं ड्रा करता हूँ. तो बेटा रिजॉल्व दिस बी इनटू वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल. ये बेटा वर्टिकल क्या आएगा, बी. वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ's मैग्नेटिक फील्ड इज यहाँ बी साइन डेल्टा, क्योंकि यहाँ डेल्टा नहीं है, यहाँ डेल्टा है. तो यहाँ हॉरिजॉन्टल क्या आएगा, बी कॉस डेल्टा. ओके वेरी नाइस, वेरी नाइस. अब देखो नए इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ सरफेस. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ's मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी third point. Horizontal component of Earth's magnetic field. And that is denoted by H. तो ये क्या है? It is the total component of. It is the component of. Component of Earth's total magnetic field in horizontal direction, in horizontal surface or along the surface of earth in horizontal direction at any place on the surface of earth. तो
तो ये है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, बेटा ये किससे रिप्रेजेंट करेंगे, हेयर एच से, एच से लिखते हैं ऐसे। तो देयरफॉर बेटा एच किसके बराबर आएगा यहाँ, बी कॉस डेल्टा, बी कॉस डेल्टा बाय डेल्टा इज डिप एंगल, बाय डेल्टा इज, बाय डेल्टा क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन लिखो और डिप एंगल, डिप एंगल है ये बेटा, और एंगल ऑफ, इसका दूसरा नाम है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो क्या है ये एच है, दिस एच इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ's मैग्नेटिक फील्ड, इट इज अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ। और ये बेटा क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ's मैग्नेटिक फील्ड, इसके साथ कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है ना। तो बेटा क्या लिखा मैंने यहाँ, तो तीन, ये थीटा, दिस थीटा इज नोन एज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, दैट इज मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिक मेरिडियन के दरमियान एट एनी प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। और बेटा दिस डेल्टा इज नोन एज एंगल बिटवीन द टोटल अर्थ's मैग्नेटिक फील्ड एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। और बेटा दिस h is equal to b cos delta is the horizontal component of Earth's magnetic field along the horizontal direction at any place on the surface of Earth। तो हो गया, ये आपको समझ में आया होगा। ओके वेरी नाइस। तो बेटा तो v क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट, आप थोड़ा डिस्कस करेंगे यहाँ, देखो बेटा के थोड़ा यहाँ इसी पर देखो बेटा क्या है, तो h किसके बराबर आया, b cos delta। देखो आप देखो बेटा एट इक्वेटर बराबर, इक्वेटर पर जाएगी, तो बता बेटा इक्वेटर पर क्या होगा, इक्वेटर पर क्या रहेगा यहाँ, देखो बेटा क्या है इक्वेटर पर क्या होगा, इक्वेटर पर सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ऐसे बेटा। देखो ये है, तो ये है अर्थ का, ठीक है ना, ये है इसका अर्थ का जो है ना, यहाँ बेटा साउथ है और यहाँ बेटा नॉर्थ मैग्नेट। तो बेटा यहाँ डायरेक्शन होगी फील्ड की, क्या होगी डायरेक्शन यहाँ बेटा, यहाँ ऐसी ऐसी लाइन्स आएंगी बेटा, ऐसी लाइन्स तो ऐसी है यहाँ, यहाँ ऐसी। देखो अगर कोई यहाँ सस्पेंड करेगा, बार मैग्नेट करेगा, तो ये बार में बेटा ऐसे रहेगा, ये बार मैग्नेट, और इस बार मैग्नेट का यहाँ अगर नॉर्थ है तो इसका यहाँ साउथ रहेगा, अगर यहाँ साउथ है अर्थ का तो बार मैग्नेट, सस्पेंडेड बार मैग्नेट का क्या रहेगा यहाँ नॉर्थ। तो बेटा यहाँ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की जो बी है, दैट इज पैरेलल टू द डायरेक्शन, पैरेलल टू द सरफेस। तो थीटा कितना बनता है, जीरो, सॉरी थीटा नहीं, डेल्टा क्या बनता है, डेल्टा बनता है जीरो। तो बेटा एट इक्वेटर डेल्टा किसके बाद आएगा, जीरो। तो बेटा पता है यहाँ ये वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, जीरो आएगा, क्योंकि यहाँ कोई वर्टिकल कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल रहते हैं। तो वर्टिकल कंपोनेंट आप क्या आएगा मैग्नेटिक फील्ड का, बी साइन जीरो। तो बेटा ये साइन जीरो तो जीरो के बाद है, तो बेटा ये बी क्या आएगा, जीरो। तो यहाँ कोई कंपोनेंट नहीं है, यहाँ सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसका, ठीक है ना। तो देयरफॉर एच क्या आएगा, एच कंपोनेंट, एच आएगा बी कॉस डेल्टा, डेल्टा क्या है इक्वेटर पर जीरो, तो कॉस जीरो बेटा किसके बराबर है, वन। तो एच किसके बराबर आएगा, बी के बराबर, ठीक है ना। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एट हॉरिजॉन्टल फील्ड एट इक्वेटर, दिस इज इक्वेटर हियर। बेटा ये इक्वेटर है, यहाँ इक्वेटर है, इस प्लेस को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इक्वेटर पर क्या रहेगा बेटा, ये हॉरिजॉन्टल रहता है यहाँ, तो ये बनाता है, ये डिप एंगल क्या है, ये डिप नहीं हो रहा है यहाँ ये डिप नहीं हो रहा है, यहाँ हॉरिजॉन्टल रहता है सरफेस पर। तो डेल्टा क्या है, जीरो। तो टोटल फील्ड यहाँ हॉरिजॉन्टल है, तो टोटल फील्ड इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल फील्ड, तो वर्टिकल कंपोनेंट कोई नहीं है। अब यहाँ जाएंगे पूल पर, ये पूल है यहाँ बेटा, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसी बेटा लाइन्स है ना, यहाँ ऐसी बेटा, ठीक है ना। देखो बेटा अब यहाँ रखेंगे, किसको रखेंगे बेटा, यहाँ ऐसी डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की। तो अगर यहाँ सस्पेंड करेंगे बार मैग्नेट ऐसी बेटा, ये बार मैग्नेट ऐसी करेंगे, तो इस बार मैग्नेट का यहाँ ये ऐसे नहीं रहेगा, क्यों, ये वर्टिकल रहेगा क्योंकि यहाँ साउथ है, तो ये वर्टिकली रहेगा, यहाँ सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऐसे रहेगा बेटा। ये यहाँ इस सस्पेंड का यहाँ साउथ है, तो यहाँ सस्पेंड का नॉर्थ है, और यहाँ बेटा इसका साउथ। तो ये कितना बनाएगा यहाँ अर्थ's मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है, लेकिन हॉरिजॉन्टल तो ऐसे है, तो थीटा कितना बनेगा, डेल्टा डेल्टा डेल्टा, डिप एंगल कितना बनेगा, 90। ये डिप हो रहा है, ये ऐसे ऐसे, ये डिप कितना हो रहा है, 90, क्योंकि डिप हो रहा है, ये हॉरिजॉन्टल नहीं रहता है सस्पेंडेड बार में, इट रिमेन्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड अर्थ's मैग्नेटिक फील्ड क्या बनाते हैं हॉरिजॉन्टल के साथ, 90। तो यहाँ लिखेंगे बेटा एट पोल्स पर क्या लिखेंगे, एट पोल्स बेटा, एट पोल्स पर क्या रहेगा बेटा, डेल्टा क्या आएगा, 90। तो बेटा यहाँ क्या रहेगा, ये कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ जीरो, यहाँ तो सिर्फ वर्टिकल है, वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये एच क्या आएगा बेटा, एच इज इक्वल टू आएगा बी कॉस, बेटा यहाँ लिखेंगे जीरो, लेकिन बेटा 90, सॉरी कॉस 90। तो कॉस 90 बेटा किसके बराबर है, जीरो के बराबर। तो बेटा ये आएगा एच इज इक्वल टू बी कॉस जीरो, तो कॉस 90 तो जीरो के बराबर, तो बी इंटू जीरो तो जीरो, तो जीरो, एच क्या आएगा, जीरो। यहाँ कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं है, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट इज इक्वल टू टोटल मैग्नेटिक फील्ड। देखो बेटा, तो देयरफॉर वी क्या आएगा, वी आएगा यहाँ बेटा, वी यहाँ क्या आएगा, ये वी कंपोनेंट, ठीक है, बी साइन 90। तो बेटा साइन 90 आपको पता है ये 1 के बराबर होता है, तो वी किसके बराबर आएगा, बी। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इज इक्वल टू वर्टिकल, क्योंकि सारा का सारा यहाँ वर्टिकल रहता है एट पोल।
आई बात समझ में? सो एज वी गो फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स द एंगल ऑफ डिप इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम। ओके, आई बात समझ में? वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। कुछ आई बात समझ में बेटा? हाँ देखो बेटा क्या है, आप यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं आप एच, ये बी किसके बराबर लिख सकते हैं? बी। यू कैन राइट बी टू बी एज इक्वल टू अंडर रूट, बेटा किसके बराबर? अंडर रूट दिस कंपोनेंट एंड दिस इज बी कॉस डेल्टा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन डेल्टा का होल स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। तो बेटा ये बी के बराबर आएगा, देखो बी कॉमन आएगा बी स्क्वायर यहाँ, तो बेटा अंडर रूट क्या रहेगा? कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा, तो ये बेटा किसके बराबर आएगा? साइन स्क्वायर, ये 1 के बराबर। तो बी एंड बी कैंसिल, तो बी आ गए बी के बराबर। फिर वही बात, हाँ बेटा ये आई बात समझ में? बी किसके बराबर आएगा? बी कॉस डेल्टा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन डेल्टा का होल स्क्वायर अंडर रूट में स्क्वायर रूट में प्लस, तो ये आएगा बी, बी तो बी के बराबर। ये समझाया था थोड़ा आपको, आई बात समझ में? 100% श्योर। तो जो डिप एंगल है वो मेजर करते हैं डिप सर्कल से। डिप एंगल इज मेजर, दिस डिप एंगल इज मेजर बाय डिप सर्कल। वो एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है ना, डिप सर्कल। डिप एंगल इज मेजर्ड बाय डिप एंगल, दिस डिप एंगल इज मेजर्ड by dip circle, that is an instrument measured by dip circle. Okay, very nice बेटा। इसके साथ ही ये टॉपिक खत्म हुआ। Now next topic that I am going to discuss is, and that topic here is बेटा, that is here magnetic properties of materials. Okay, very nice। देखो बेटा क्या here. Now next question here is magnetic properties of materials. बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, ठीक है ना? ओके, वेरी नाइस। Okay, very nice. The next question that I am going to discuss here is magnetic properties of materials. Okay, तो देखो बेटा क्या करेंगे यहाँ, स्टार्ट देखो बेटा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल पढ़ने से पहले बेटा here are 3 types of magnetic materials: डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। एक और है एंटी फेरोमैग्नेटिक, लेकिन वो नहीं पढ़ेंगे। एंटी फेराइटिस है, वो नहीं पढ़ना है। सिर्फ यह पढ़ना है बेटा मैग्नेटिक जो है ना, मैग्नेटिक मटेरियल्स वो 3 टाइप के होते हैं यहाँ: डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। दीज वी हैव टू डिस्कस हियर। लेकिन बेटा पहले यहाँ ये समझने के लिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल मैं कुछ टर्म्स बताऊंगा। टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, टर्म्स। ओके, वेरी नाइस। टर्म्स related to magnetic properties of materials. Magnetic properties of materials. देखो बेटा पहली टर्म जो यहाँ काम आएगी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में, पैरा, डाई, पैरा एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में, वो है बेटा पहली टर्म, आपको पता है, एंड दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कहो बेटा, इसका दूसरा नाम है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहो बेटा, नो प्रॉब्लम। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कहो, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहो बेटा, और इसका एक और नाम है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। और बेटा इसका एक और नाम है मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं इसको, एंड दैट इज डिनोटेड बाय बी हियर। ये किसे रिप्रेजेंट करते हैं? बी से, सिंपल, जिसको बी मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड पहली टर्म है बेटा, और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इसको कहो, नो प्रॉब्लम। आज इसको कहेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, एक और नाम है इसका। आज इसको बेटा कहेंगे मैग्नेटिक इंडक्शन। 2-4 नाम है, 3-4 नाम है इसके, ठीक है ना? तो सिंपल में ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना? देखो बेटा क्या है, ये आपको पता है कि लॉरेंट्ज़ फोर्स में है। वी नो लॉरेंट्ज़ फोर्स बेटा किसके बाद है? क्यू वी बी साइन थीटा, याद है?
तो बेटा यहाँ हमने डेफिनेशन आई थी इसी में, लॉरेंट्ज़ फोर्स में हमको डेफिनेशन मिली थी इस मैग्नेटिक फील्ड की। तो बी किसके बराबर आएगा बेटा यहाँ, एफ क्यू वी साइन थीटा, जबानी याद है? हाँ। और ये बी किसके बराबर आया था, एफ के बराबर, कब याद है बेटा? कब? व्हेन क्यू हमने क्या लिया था, 1 कूलम, याद है? और वी ले लिया था 1 मीटर पर सेकंड, याद है बेटा? तो बेटा हमने थीटा ले लिया था 90, तो साइन 90 किसके बराबर है, 1 के बराबर, याद है? तो मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट in the region of magnetic field is defined as the force experienced by one coulomb of charge when it is moving with a velocity of 1 meter per second in a direction perpendicular to the direction of magnet। वन में मैंने डिस्कस किया है, लेकिन ये याद रखना, ये मैग्नेटिक फील्ड है। इसका ऐसा यूनिट मैंने दिखाया है बेटा ऑलरेडी आपको, इसका ऐसा यूनिट क्या है ये याद रखो बेटा, ये काम आएगा। ऐसा यूनिट ऑफ बी किसके बारे है बेटा, एंड दैट्स टेस्ला, याद है? टेस्ला है, किसके बारे, टेस्ला। और सीजीएस यूनिट इसका है गॉस, सीजीएस यूनिट ऑफ बी इज गॉस, और बी इज बेटा गैस, जी ए यूज गैस, ठीक है ना? तो बेटा आपको पता है कि 1 गैस किसके बात है, 10 पावर माइनस, ये मैंने दिखाया ऑलरेडी आपको, ठीक है ना? थोड़ा यहाँ लिखना है, रिकैप करना है। एंड 1 गैस इज इक्वल टू बेटा 1 गैस किसकी बात है, 10 पावर माइनस 4 टेस्ला। देखो बेटा टेस्ला इज ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड गैस इज सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। 1 गैस किसके बात है बेटा, 10 पावर माइनस 4 टेस्ला, याद रखो। ओके, वेरी नाइस। नाउ सी डियर, अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ डिस्कस होने वाले हैं, करने वाले हैं हम, because that is here, see here, that is बेटा मैग्नेटाइजिंग फोर्स, दूसरी टर्म है यहाँ मैग्नेटाइजिंग फोर्स। और बेटा इसको कहते हैं मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। बेटे ऐसे डिनोट करते हैं, किसे ऐसे, याद रखो यहाँ, ये आगे काम आएगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में बहुत ज्यादा काम आएगा। तो बेटे ठीक है ना, क्या लिखा मैंने दूसरा, मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी किसे डिनोट करते हैं, ऐसे। पहली जो बी है वो वेक्टर क्वांटिटी और ए भी वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना, याद रखना। मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी किसे लिखते हैं, ऐसे। ये क्या होती है, देखो बेटे, क्या याद है, ये सॉलिनॉइड, ये सॉलिनॉइड याद है बेटा? अगर हम इसमें क्या पास करेंगे, करंट आई, तो B क्या होता है, इनसाइड B मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, अगर N इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, N इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, याद है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, N इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो बेटा याद है कि B किसके पास, इनसाइड सॉलिनॉइड कितना आता था, ये B कितना आता था, वी नो इनसाइड ए सॉलिनॉइड, वी नो इनसाइड ए सॉलिनॉइड क्या होता है बेटे, बी होता है बराबर म्यू नॉट एन आई, ठीक है ना? व्हाट इज म्यू नॉट, म्यू नॉट इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, अगर यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ खाली हवा है यहाँ, एंड दैट इज द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ में कितनी टर्न्स है, दैट इज एन। एंड आई क्या है, आई इज द करंट दैट विल पास थ्रू द सॉलिनॉइड। तो बी कितना होता है, म्यू नॉट एन आई। अगर बेटा मैं ऐसे लिखूंगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट, ऐसे ही एन आई के बदले H लिखूंगा, H, एंड दैट H इज नोन एज मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, वेयर H इज इक्वल टू Ni, that is N is number of turns per unit length and I is current, so this is current turns per unit length, current turns per unit length क्या है, तो H क्या है, एम्पियर टर्नर्स, therefore H, where H is equal to this, तो H क्या है, what is H? This H is known as, where H is equal to Ni is known as, बेटा इसको क्या कहते हैं, मैग्नेटाइजिंग फोर्स, फोर्स और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजिंग फोर्स और बेटा मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। सी डियर, दिस यहाँ बेटा क्या है, एन क्या है, एन, व्हाट इज दिस, तो ये H क्या है, वेयर N इज इक्वल टू H के बराबर, देयरफॉर H किसके बराबर लिखा है हमने, H इज इक्वल टू Ni। तो डेफिनेशन क्या है, Ni इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, I इज करंट, तो हम कहेंगे एम्पियर टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एम्पियर टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या है H, so H is defined as ampere turns, therefore H is defined as ampere turns per unit length, एम्पियर टर्नर्स पर यूनिट लेंथ क्या है, एम्पियर टर्नर्स, H इज क्या है, एम्पियर टर्नर्स
करंट टर्न्स या एम्पियर टर्न, करंट टर्न्स पर यूनिट लेंथ डिवाइड बाय एल, टोटल लेंथ ऑफ दिस सॉलिनॉइड। ओके ओके, आई बात समझ में? वेरी नाइस। तो एसआई यूनिट क्या होगा इसका? एसआई यूनिट बताइए बेटा, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ एच क्या होगा? एम्पियर टर्न्स का टर्न का कोई यूनिट नहीं है, एम्पियर का है ए और लेंथ का है मीटर। तो बेटा क्या आएगा ये? एम्पियर मीटर -1 इज एसआई यूनिट ऑफ एच। ठीक है ना, याद रखा? तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी का फील्ड क्या है, यूनिट क्या है? ए मीटर इनवर्स। देखो बेटा क्या है, ये बी जो है ना यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, ये बी तो मैंने लिखा यहाँ म्यू नॉट एच। तो एक्चुअली ये एच ही प्रोड्यूस करता है बी, करंट टर्न्स ही यहाँ, दिस करंट टर्न्स पर यूनिट लेंथ, करंट टर्न्स पर यूनिट लेंथ दैट इज एच, इट यही प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और सिंपली मैग्नेटिक फील्ड। ओके, वेरी नाइस। तो इसीलिए इसको मैग्नेटाइजिंग फोर्स कहते हैं, क्योंकि यही करंट टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या प्रोड्यूस करता है? क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड। इसलिए इसको कहते हैं मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। Okay, very nice, and that is the cause here. That is cause here for magnetic field. Okay, very nice. 100% आई बात समझ में? Okay, that now next term here is this permeability. तो बेटा थर्ड टर्म यहाँ ये याद रखो बेटा, ठीक है ना? याद रखो ये नेक्स्ट टर्म है यहाँ बेटा। Okay, very nice. That next term here is magnetic permeability. तो बेटा ये क्या है? इट इज डिनोटेड बाय म्यू से। किसे डिनोट करते हैं? म्यू से। किसी मटेरियल की ये क्या होती है? व्हाट इज दिस? इट इज द एबिलिटी ऑफ ए मैग्नेटिक मटेरियल टू अलाउ द नंबर ऑफ लाइन्स टू पास थ्रू इट। अरे किसी मैग्नेटिक मटेरियल में कितनी सलाहियत है, कितनी कैपेबिलिटी है, कितनी एबिलिटी है कि वो मैक्सिमम लाइन्स को अपने अंदर पास करने दे। एंड दैट इज इंडिकेटेड बाय ए टर्म, एंड दैट टर्म इज नोन एज मैग्नेटिक परमेबिलिटी। जिसकी जिस मैग्नेटिक सबस्टेंस की ज्यादा है, इतनी इसमें ताकत है कि वो ज्यादा से ज्यादा टर्न्स आपने ज्यादा से ज्यादा फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड आपने जो अपने मटेरियल में पास अलाउ करे। ठीक है ना? अगर ये किसी का ज्यादा है तो इसमें इस मटेरियल में नंबर ऑफ लाइन्स ज्यादा पास होती है। अगर किसी मटेरियल का काम है तो अगर इस मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड अपने अंदर अलाउ नहीं करेगा, पास करने होने नहीं देगा। ओके, तो बेटा क्या है? और ये किसके बराबर है बेटा? अभी हमने निकाला, तो भी हमने निकाला। अगर यहाँ मटेरियल कोई रखेंगे, इसमें आप मटेरियल कोई रखेंगे, देखो अब मैंने यहाँ कोई मैग्नेटिक मटेरियल रखा, और जब मटेरियल रखा बेटा यहाँ मैग्नेटिक मटेरियल, इसकी परमिटिविटी क्या होती है? म्यू। ये म्यू क्या है? आप यहाँ बी किसके बराबर लिखेंगे? म्यू नॉट नहीं, आप बी लिखेंगे म्यू एच। क्यों? आप यहाँ बेटा हवा नहीं है, यहाँ मटेरियल है, इसकी परमिटिविटी है म्यू। तो बी क्या लिखेंगे यहाँ? म्यू एच के बराबर, कि B इज एक्चुअली बेटा तो हमने लिखा था म्यू नॉट एन आई, लेकिन अगर यहाँ फ्री स्पेस होती, लेकिन यहाँ अगर मटेरियल इसमें रखेंगे, कोई सॉफ्ट आयरन रखेंगे और कुछ रखेंगे, तो B लिखेंगे यहाँ म्यू एम एन आई। एंड एन आई बेटा आपको पता है कि एन आई इज नथिंग, इट इज एच। ये क्या है? एच। तो B क्या है? B इज म्यू एच। B दिखाया ना एच। ओके, तो ये म्यू किसके बराबर आएगा बेटा? म्यू आएगा B बाय एच। आई बात समझ में? इट इज द रेशियो ऑफ, तो म्यू क्या है? व्हाट इज म्यू? म्यू इज द रेशियो ऑफ, mu is the ratio of magnetic field to the, it is the ratio of magnetic field to the magnetizing force. ओके, आई बात समझ में? आई बात समझ में? देखो बेटे क्या है, अगर ये करंट कम टर्न्स है, करंट ये मैग्नेटाइजिंग, दैट इज एम्पियर टर्न्स। व्हाट इज एच? एच इज एम्पियर टर्न्स पर यूनिट लेंथ। एच इज बेटा एच क्या होता है? करंट टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अगर करंट कम है, करंट टर्न्स कम है, लेकिन B ज्यादा है, इसमें यहाँ B ज्यादा हुआ तो इसकी ज्यादा परमिएबिलिटी है। लेकिन अगर ज्यादा करंट टर्न्स है यहाँ ज्यादा, लेकिन ये बिल्कुल मैग्नेटाइज नहीं हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर नहीं हो रहा है, तो इसकी परमिएबिलिटी क्या है? कम। बात आई समझ में? अगर कम मैग्नेटाइजिंग फोर्स पर ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसमें ज्यादा मैग्नेट अपने अंदर ज्यादा लाइन्स पास करने देगा, तो इसकी परमिएबिलिटी ज्यादा है। अगर ज्यादा एम्पियर टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो है ना, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर B, अगर ज्यादा से कम इसमें मैग्नेटिक फील्ड या कम मैग्नेटिक फील्ड इसमें पास हुई, तो इसमें क्या परमिएबिलिटी कम है। बात आई समझ? इट इज द रेशियो ऑफ B टू H। इट इज द रेशियो ऑफ B टू H। ओके, SI यूनिट क्या हो गया? SI यूनिट ऑफ म्यू का क्या है? क्या आएगा बेटा? बताए म्यू का क्या है? SI
तो बी का कितना है बेटा, बी आपका पता है टेस्ला, बी का टेस्ला है। और बेटा एच का एम्पियर, एम्पियर टर्न्स पर यूनिट लेंथ, दैट इज एम्पियर पर मीटर, ठीक है ना, एम्पियर, तो मीटर ऊपर जाएगा, तो बेटा क्या है, टेस्ला मीटर, एम्पियर इनवर्स इज एस आई यूनिट ऑफ म्यू। तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का यूनिट क्या है, क्योंकि इसका टेस्ला है, एच का क्या है, एम्पियर पर मीटर, लेकिन मैंने एम्पियर करंट टर्न्स पर, ठीक है ना, यहाँ बेटा इसलिए यहाँ गलती, यहाँ एम्पियर टर्न्स पर, चलो यहाँ लिखेंगे थोड़ा, चलो आप लिखेंगे बराबर, क्या एम्पियर टर्न्स पर यूनिट लेंथ मीटर, ठीक है ना, तो बेटा ये आएगा टेस्ला, ये मीटर ऊपर जाएगा, ठीक है ना, डिवाइड बाय ए, तो बेटा टेस्ला मीटर ए ऊपर जाएगा तो -1, तो टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स इज एस आई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ओके, इसी है टॉप, बहुत इजी। और इसके बाद हम नेक्स्ट टर्म है रिलेटिव परमिएबिलिटी, इसी में है बेटा चौथी टर्म है ये आज की जो है ना, चौथी टर्म मैग्नेटिक परमिएबिलिटी रिलेटिव, चौथी टर्म यहां जो है बेटा दैट इज रिलेटिव परमिएबिलिटी, दैट इज म्यू आर, बेटा ये सिंपल है, किसके बारे में, म्यू आर इज इक्वल टू म्यू एम बाय म्यू नॉट। अरे इस मटेरियल की क्या है, देखो बेटा क्या है, इस मटेरियल की क्या होगी यहाँ, चलिए ये है सॉलिनॉइड, ठीक है ना, ये सॉलिनॉइड है, और इसी सॉलिनॉइड में मैंने एक मटेरियल रखा है यहाँ बेटा, मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है ना, और बेटा यहाँ म्यू नॉट है, बाहर इसका जो है ना वो म्यू नॉट है, लेकिन इसके अंदर जो परमिएबिलिटी है दैट इज म्यू एम। तो व्हाट इज द रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ दिस, इट इज द रेशियो ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ द सबस्टेंस, परमिएबिलिटी ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल टू द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो म्यू आर क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम मटेरियल टू द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, वेरी नाइस। और तो बेटा इसके बराबर ही होती है, देखो बेटा इसके बाद CDL इट इज आल्सो डिफाइंड एज म्यू आर, इसके बराबर है, एक और टर्म है इसकी म्यू आर, BM by B नॉट, देखो बेटा कितना इसके अंदर BM है, इसके अंदर कितना BM है, डिवाइड बाय बाहर कितना है B नॉट, तो B नॉट तो एक्सटर्नल में है व्हेन दिस इज नॉट हियर प्लेस्ड, और BM इज व्हेन इट इज प्लेस्ड, तो BM इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल एंड B नॉट इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सॉलिनॉइड व्हेन नो मटेरियल इज प्रेजेंट। So what is the relative permeability of this substance? It is the ratio of BM, that is magnetic field line is in this. तो the magnetic field line is when this is not present, हम इसको बाहर लेंगे तो this B नॉट, ठीक है ना, it is the ratio of relative permeability of a magnetic material is the ratio of the magnetic field there in the material to the magnetic field in the free space when there is no material. Okay, very nice. आई बात समझो, this is म्यू आर, बात आई समझो बेटा, 100% श्योर, टेंशन वाली बात, म्यू आर किसी बारे, BM by B नॉट, BM is the magnetic material में कितना मैग्नेटिक फील्ड है, to the ratio with respect to air, यहाँ हवा में कितना है, that is B नॉट, मटेरियल में कितना है BM by B नॉट will give relative permeability of this magnetic material. Okay, very nice, बात आई समझ में, 100% श्योर, टेंशन वाली बात बेटा तो नहीं है ना। ओके, ये सॉलिड के अंदर मैंने रखा, बेटा इसके बाद इसका it has no units. Why? Because it is a ratio of two same things. It is a ratio of two same physical quantities. So it has no units. Relative permeability का कोई unit नहीं होता है. Okay. Now next thing here is fifth, तो बेटा fifth property जो है, and that is here intensity of magnetization. Fifth. Fifth point is in fact ये पांचवा point जो है that is intensity of magnetization. बेटे आई से डिनोट करते हैं, किसी आई से भी, यहाँ कभी एम से भी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के भी आई से भी, यहाँ आई तो करंट भी है, लेकिन यहाँ ऐसे हम मैग्नेटिक मटेरियल में आई को क्या मानते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। बेटा ये किसकी बात है, देखो बेटा, दिस आई इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ डाइपोल मोमेंट्स per unit volume
in a material when this material is placed in a magnetizing field. What is I? Number of dipole moments कितने बनेंगे इसमें? नंबर ऑफ डाइपोल मोमेंट्स इनसाइड में, इस मटेरियल में कितने अलाइन होंगे? नंबर ऑफ डाइपोल मोमेंट्स इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, और इनकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी पर यूनिट वॉल्यूम? दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ दिस मटेरियल व्हेन दिस मटेरियल इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल फील्ड, बस वही मैग्नेटाइज करेगा इसको, ठीक है ना? क्या नंबर ऑफ डाइपोल मोमेंट्स, कितने डाइपोल मोमेंट्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम में? अगर कम वैल्यूम में ज्यादा डाइपोल मोमेंट्स है, जब हम इसको किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो इसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ज्यादा है। अगर कम वैल्यूम में ज्यादा तो इंटेंसिटी ज्यादा। अगर ज्यादा वैल्यूम में कम डाइपोल मोमेंट्स अलाइन होंगे इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन तो इसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कम होगी। तो क्या है? नंबर ऑफ डाइपोल मोमेंट्स पर यूनिट वैल्यूम व्हेन दिस इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल फील्ड। तो कितना है? ये इनसाइड होता है मटेरियल में, ये इनसाइड होता है। एच क्या होता है? आउटसाइड। एच इज आउटसाइड, H is due to this, but this intensity is inside. तो बता बेटा ऐसा यूनिट क्या होगा इसका? नंबर का कोई होता है, लेकिन डाइपोल मोमेंट क्या क्या आएगा बेटा? M होता है, वो M इंटू 12 है, होल स्ट्रिंग इंटू 12। तो बेटा यहाँ लिखेंगे वैल्यूम। तो बेटा पूल स्ट्रिंग का आपको पता है कि आइडियल होता है एम्पियर मीटर होता है, एम्पियर इंटू मीटर। और बेटा लेंथ का होता है मीटर, और बेटा वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब। पूल स्ट्रिंग का होता है एम्पियर मीटर, 12 का बेटा है मीटर, वॉल्यूम का मीटर क्यूब। देखो मीटर और ये मीटर से क्या 1 मीटर बचेगा, तो क्या आ गया? एम्पियर पर मीटर। तो बेटा ये लिखेंगे एम्पियर मीटर को ऊपर लेंगे तो -1। व्हाट इज दिस? SI यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। आई बात समझ में? इजी है ना? बहुत इजी बेटा, बात आई समझ में? हाँ, जितने नंबर ऑफ डाइपोल मोमेंट्स ज्यादा होंगे ना इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इन ए मैग्नेटिक मटेरियल व्हेन दिस इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल फील्ड, इसकी इतनी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ज्यादा होगी। जितने कम होंगे ना पर यूनिट वैल्यूम, इतना इसकी इंटेंसिटी भी कम होगी। बट दे शुड अलाइन इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। क्लियर? आप बेटा यहाँ छठा पॉइंट, दैट इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बेटा ये किसे लिखते हैं? कायम से लिखते हैं, चायम। दैट इज ग्रीक वर्ड CHI, काय से लिखते हैं कायम। दैट इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ये क्या होता है? तो बेटा इट इज द रेशियो ऑफ CDR, इट इज द रेशियो ऑफ कायम। किसके बात है? कायम होता है बेटा बराबर I/H। I क्या होती है बेटा? I होती है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। और बेटा H होता है मैग्नेटाइजिंग फोर्स। तो I/H, XM क्या होता है बेटा? XM इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटाइजिंग फोर्स, ठीक है ना? देखो बेटा, अगर कम H पर I ज्यादा होगा तो XM इसकी ज्यादा होगी। इट इज द बेटा ये, ठीक है ना? XM क्या डिग्री ज्यादा होगी जितना H, अगर कम H पर I ज्यादा होगी। ये देखो बेटा ऐसे, ये मैं सॉलिनॉइड लूंगा यहाँ बेटा, देखो ये सॉलिनॉइड है, और इसमें बेटा मैं करंट I पास करूंगा। अगर मैं कोई यहाँ मैग्नेटिक मटेरियल ऐसे लूंगा, ठीक है ना? अगर इसमें बेटा जो I है ना, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ डाइपोल मोमेंट। नंबर ऑफ इंटेंसिटी क्या होगी? ये H है, एम्पियर टर्न्स बाहर है, ये IH। NH क्या है? NI क्या है? NI इज H। अगर कम H पर इस पर ज्यादा इंटेंसिटी होगी डाइपोल की, तो इसमें ज्यादा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होगी। अगर ज्यादा एम्पियर टर्न से इसमें कम डाइपोल मोमेंट इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? इसमें कम है, तो
तो इसमें मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कम है, ठीक है ना। अगर इंटेंसिटी अगर नंबर ऑफ डाइपोल मोमेंट्स इसमें ज्यादा क्रिएट हो जाएंगे, कम एक्सटर्नल फील्ड से, कम इस करंट एम्पियर टर्न्स पर लेंथ से, ऐसे, तो बेटा ये एक्सएम ज्यादा होगा। अगर ज्यादा एम्पियर टर्न्स पर लेंथ से इसमें बहुत कम बनेगा ये इंटेंसिटी, ज्यादा डाइपोल मोमेंट्स पर वैल्यू नहीं होंगे ज्यादा, तो इसमें एक्सएम क्या होगी, कम। ये आ गई, थोड़ा आएगा आपको समझ में, हाँ ओके। इट हैज नो इंडेक्स, वाई? क्योंकि बेटा आई का भी यूनिट है एम्पियर मीटर -1 और बेटा एच का भी यूनिट है एम्पियर मीटर -1, ठीक है ना। तो ये भी एम्पियर मीटर -1, ये भी है, लेकिन ये बेटा इनसाइड है, ये आई होता है इनसाइड, लेकिन ये एच होता है क्या, कॉज, लेकिन आई होता है इफेक्ट। एच इज कॉज, आई इज इफेक्ट। आई इनसाइड द मटेरियल होता है, लेकिन एच तो ड्यू टू करंट टर्न से होता है। इसी की वजह से यहाँ बेटा ये अलाइन होता है इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। अदरवाइज ये रैंडमली होते हैं, ये क्या होते हैं, रैंडमली होते हैं ऐसे, लेकिन इसकी वजह से इन डायरेक्शन पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन होता है और ये मैग्नेटाइज होता है। ओके, वेरी नाइस। तो बेटा बात आई समझ में, वेरी नाइस। नाउ रिलेशनशिप बिटवीन, अब आज के लास्ट क्वेश्चन है आज की इस महफिल का, इस सेशन का बेटा आखिरी क्वेश्चन ये है कि ये रिलेशनशिप बिटवीन, थोड़ा पानी पियेंगे फिर बताएंगे रिलेशन। बेटा आखिरी पॉइंट है रिलेशनशिप बिटवीन म्यू आर एंड बेटा एंड कायम। बेटा ये क्या है, दिस इज रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड दिस इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। किसके दरमियान रिलेशन निकालेंगे, रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के दरमियान रिलेशन निकालना है। देखो बेटा क्या है, यहाँ दिखाई, ये मैं लूंगा बेटा ऐसी एक सॉलिड है और बेटा इसमें मैंने रखा एक मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है ना, ऐसे ये मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। यहाँ मैंने करंट पास की और एन इज नंबर ऑफ करंट पर यूनिट लेंथ, तो नहीं। देखो बेटा क्या, यहाँ एक टोटल बी जो इसमें है ना सॉलिड में मटेरियल के साथ, टोटल बी, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सॉलिड। तो बी नेट क्या आएगा इनसाइड बी नेट, वो बेटा होगा बी नॉट, क्योंकि यहाँ जो है दैट इज बी नॉट, और बेटा जो इसमें है दैट इज बी एम। तो बेटा ये किसके बराबर आएगा, टोटल, ये टोटल बी क्या आएगा, बी नॉट प्लस बेटा आएगा बी एम, ठीक है। बात आई समझ में, क्या लिखा बेटा मैंने, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इन द सॉलिड ड्यू टू दिस करंट इज बेटा मटेरियल, यहाँ हवा में कितना है दैट इज बी नॉट, और इस मटेरियल में कितना है दैट इज बी एम। टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, बी नॉट प्लस बी एम, ठीक है ना, ये है बी नेट, याद रखो। टोटल इज बी नॉट हवा में और प्लस इसमें कितना है बी एम, ओके। देखो बेटा, बट बेटा बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एच, एच क्योंकि ये बाहर है, बाहर से ऐसे होता है, बाहर से ऐसे होता है। एंड बेटा बी एम इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, क्योंकि अंदर से इंटेंसिटी से होता है, बाहर से बेटा ऐसे होता है, लेकिन अंदर से बेटा इसके अंदर जो इंटेंसिटी होती है, तो क्या लिखा मैंने, बी नॉट इज म्यू नॉट एच, म्यू नॉट इज ड्यू टू म्यू नॉट एच, लेकिन इसके अंदर जो है ना दैट इज यहाँ जो है बी एम, ये बी एम जो है दैट इज इंटेंसिटी कितनी है, दैट इज म्यू नॉट आई, ठीक है अंदर। ये बी नॉट इज म्यू नॉट एच बाहर, लेकिन बी एम इनसाइड द मटेरियल दैट इज म्यू नॉट आई, इंटेंसिटी कितनी है ये, लेकिन एच एंड आई का सेम यूनिट है, ओके। तो देयरफॉर ये फर्स्ट लिखेंगे बेटा, ये सेकंड और बेटा ये थर्ड, सब्स्टिट्यूट सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट। बेटा बी नेट किसके बराबर आएगा, बी नेट थ्रू द सोर्स सॉलिड, तो दिस प्लस दिस किसके बराबर आएगा, बी नॉट की जगह लिखेंगे म्यू नॉट एच प्लस बेटा बी एम की जगह लिखेंगे म्यू नॉट आई, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ लिखेंगे बी नेट, तो बेटा बी नेट किसके बराबर आएगा, बी नेट यहाँ आएगा म्यू नॉट एच, म्यू नॉट एच प्लस बेटा ये क्या है, प्लस म्यू नॉट आई, ठीक है ना। आई देखो बेटा क्या है, अब हम जानते हैं, यहाँ लिखेंगे, देखो इसकी लिखो बेटा इक्वेशन फोर्थ, सीनियर। नाउ वी नो बेटा, क्या पता है हमको, दैट इज डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू आई बाय एच। तो बेटा यहाँ डिवाइड 1 करेंगे, आई 1 इज आई इज इक्वल टू एक्स एम इंटू एच, तो क्या आएगा एक्स एम इंटू एच, ठीक है ना। ये बेटा लिखो इक्वेशन नंबर 5th, सब्स्टिट्यूट 5th एंड 4th, लेकिन किसी जगह आई की जगह करो सब्स्टिट्यूट बेटा,
सब्स्टिट्यूट फिफ्थ इन बेटा किसमें, फोर्थ में, करो बेटा सब्स्टिट्यूट। तो देयरफॉर ये क्या बनेगी, बी नेट आएगा बेटा बराबर म्यू नॉट एच प्लस बेटा यहाँ लिखेंगे म्यू नॉट, लेकिन आई की जगह क्या लिखेंगे, एक्स एम इनटू एच, ठीक है ना। ओके वेरी नाइस। तो बेटे साफ करेंगे, हाँ सर कर लो साफ, कोई प्रॉब्लम नहीं, सीरियस। तो देयरफॉर बेटा यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बी नेट किसके बराबर आएगा, यहाँ बेटा क्या कॉमन निकले, म्यू नॉट एच, यहाँ भी म्यू नॉट एच कॉमन, म्यू नॉट एच बेटा अंदर आएगा 1, यहाँ 1 रहेगा बेटा, प्लस आएगा का एम, ठीक है ना। ओके वेरी नाइस। तो बेटा यहाँ क्या लिखेंगे, बात आई समझ में, यहाँ बी नेट किसके बराबर है, बी नेट बेटा जो है ना ये म्यू एम एच के बराबर, क्योंकि ये मटेरियल प्लस सॉइलनाइड है, तो मटेरियल के साथ साथ सॉइलनाइड है, तो मटेरियल इसमें बड़ा है, तो क्या लिखेंगे, बी नेट इज इक्वल टू म्यू एम एच, बी नेट इज इक्वल टू म्यू एम एच, क्योंकि मटेरियल है ना इसमें इसके साथ साथ है। ओके इज इक्वल टू म्यू नॉट एच बेटा एन 1 प्लस एक्स का एम। ओके यहाँ लिखेंगे बी नेट किसके बराबर है बेटा, यहाँ आप लिखा था म्यू एम एच। ओके ये याद रखना। तो बेटा ये एच और एच क्या हुआ, कैंसिल, बताए। ओके वेरी नाइस। देखो बेटा क्या है, सीरियस, वेरी क्लोज टू द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो बेटा म्यू एम इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, म्यू नॉट इनटू 1 प्लस बेटा क्या एम। ओके वेरी नाइस। तो बेटा बताइए यहाँ आएगा म्यू एम बाय बेटा म्यू नॉट इज इक्वल टू बेटा यहाँ 1 प्लस का एम, ठीक है ना। तो म्यू एम बाय म्यू नॉट किसके बराबर आएगा, दैट इज रिलेटिव परमिएबिलिटी, but this thing is equal to relative permeability is equal to 1 plus chi m, and that is the relationship between relative permeability and magnetic susceptibility. ये relation किसकी सुविधा में है, this is required relationship between किसकी से दरमियान, between mu r that is magnetic relative permeability and chi m that is magnetic susceptibility, ये इनके दरमियान रिलेशन है। ओके वेरी नाइस। एंड बेटा इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म हुआ चाहता है। विशिंग यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक।